السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضی علی، حاجت روا محمد مشکل کشا علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں میں کہ آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں اس پروگرام میں آپ کے روبرو ہوں۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مقدس محفل جس میں ہماری اور آپ کی ملاقات اور اس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کا بڑا اچھا موقع رہتا ہے۔ یہ شعیب آخون جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام الدین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھیجا، ان کی امت میں بھیجا، ان کا شیدائی بنایا، ان کا سچا عاشق بنایا، ان کا سچا دیوانہ بنایا،
یہ بڑا کرم ہے مولا کا، بڑا احسان ہے مولا کا۔ ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ عزیزو، ہم اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے اور عاشق ہیں جن کو دیکھنے کی حسرت آدم علیہ السلام لیے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ نبینا لیے ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل لیے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ لیے ہوئے ہیں، حضرت شعیب لیے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا لیے ہوئے، غرض کی 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام جو آئے، ہر ایک اسی جستجو میں مولا اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ اور کتنا بڑا کرم، اب آپ سوچئے، اللہ رب العزت کا ہم سبوں پر ہے کہ انبیاء جس کی جستجو کریں اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم سبوں کو پیدا فرمایا، ان کی امتی بنایا اور ان کا دیوانہ اور ان کا عاشق بنایا۔ اور کیسا کرم محبوب خدا کا اپنے فالوورز پر، اپنے غلاموں پر، اپنی امت پر، اپنے عاشقوں پر کتنا عظیم الشان کرم رہا کہ آقا ایک ایک لمحہ ہما وقت ہماری فکر کرتے رہے، تمہاری فکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ میرے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، قناعت صبر شکر کی دولت سے مالا مال فرما، مولا ان سے ہر آفتوں کو، ہر بلاؤں کو، ہر مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ میرے چاہنے والوں سے بہتر کام لے۔ اے اللہ میرے چاہنے والوں کو ہمیشہ سر بلندی عطا فرما۔ ہمیشہ آقا دعا فرماتے رہے، کہتے رہے یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امتیوں کی حفاظت فرما، ان کی نگہبانی فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آج ہم اور آپ جو محفوظ ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے، آج ہم اور آپ جو اتنے چین و سکون کی سانسیں لے رہے ہیں، اتنی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا کمال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہے، ان کی عطا کا ہے، ان کے کرم کا ہے۔ عزیزو، محبوب خدا نے ہما وقت ہر لمحہ ہمارا تمہارا خیال رکھا۔ اور ہماری تمہاری جستجو کیا رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہم سے راضی رہے، ہم سے خوش رہے، مولا ہمارا اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یقیناً نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں اس کے وقت پر اسے ادا کرنا ہے۔ حج ہم پہ فرض ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، حج کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے وقت پر کرنا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالک کے نصاب ہم ہیں تو اس کے وقت پر اس زکوٰۃ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ فرائض کو تو ادا ہی کرنا ہے۔ روزے کا مہینہ آ گیا، روزہ فرض ہے، عاقل و بالغ پر ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ سارے کام کو انجام تو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی عبادت، ریاضت، تقوی و پرہیزگاریاں ہیں، ان کی مقبولیت اگر چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں ہو، رب راضی ہو جائے، رب ہم سے خوش ہو جائے، اپنا قرب خاص مولا ہمیں عطا فرما دے، تو پھر ہمیں تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ آؤ، آپ نے بارہا میری زبان سے سنا ہوگا، ہم ایک ایسی پیاری، دل پہ لگنے والی، دل و دماغ کو روشن کر دینے والی
बात की तरफ चलें, पैगाम की तरफ चलें। आपने हजरत राबिया बसरिया को सुना होगा। आप जानते हैं कि हजरत राबिया बसरी का क्या मुकाम था। अजीजों, बस आप इतना सा समझ लें कि हजरत सैयदा राबिया बसरी का मुकाम कितना बुलंद था, अपने रब की बारगाह में कितना वो मकबूल थी। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हजरत राबिया बसरिया का वो मुकाम औलियाए किबार, औलियाए किराम के नजदीक था कि मशाइखीन किराम फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वाज की महफिल को उस वक्त तक नहीं शुरू करते, अपने खिताब को उस वक्त तक नहीं शुरू किया करते थे जब तक कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं हो जाया करता था कि महफिल के अंदर हजरत राबिया बसरी तशरीफ ला चुकी हैं। जब वो आ जाती तो आप खिताब फरमाते। अजीजों, ये वो राबिया बसरी जिन्हें अपने वक्त के जय्यद औलियाई किराम देख करके खड़े हो जाते हों, जिनकी दुआओं के लिए एक से एक औलियाई किराम हाथ बांधे सफ में खड़े रहा करते थे कि मखदूमा हमें दुआएं दे दें। वो राबिया बसरिया, वो राबिया बसरिया जिनके इस्तकबाल के लिए काबतुल्लाह खुद चल के तशरीफ लाए। अजीजों, अंदाजा लगाओ कि उस राबिया का क्या मुकाम होगा। वही राबिया बसरिया अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई हैं और ज़ारो कतार रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, रो रही हैं, गिरफ्तारी कर रही हैं। इतने में एक दरवेश का गुजर हुआ, देखा राबिया बसरिया रो रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहा है। वो शख्स राबिया के करीब पहुंचा, उन्हें सलाम अर्ज किया। हज़रत राबिया बसरिया ने हल्के से अंदाज में उससे जवाब दिया, ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया, शरा का मुकम्मल लिहाज रखते हुए जवाब दिया। उस दरवेश ने पूछा कि ए राबिया बसरिया, हम राह से गुजर रहे थे, हमने देखा कि आप ज़ारो कतार रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं? अरे, आपको रोने की जरूरत क्या है? आपकी इबादत और रियाजत का चर्चा तो पूरे बसरा और पूरे बगदाद, पूरे इराक में है। हर चहार जानिब आप ही की इबादत और रियाजत का चर्चा है। आप तो वह मुकद्दस खातून हैं कि जिनके बारे में मशहूर है कि हर शब 1000 रकातें नफल पढ़ती हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला कितना राजी होगा आपसे, कितना खुश होगा आपसे। अगर आप ही रोइएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा? हजरत राबिया बसरिया खड़ी हो जाती हैं, अपने आंसुओं को पोंछती हैं और उस दरवेश से मुखातब होकर कहती हैं कि फिर से बोल, तूने क्या कहा मुझको? उसने अपनी बात को रिपीट किया। जब रिपीट किया तो हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, ए शख्स सुन, आज तक मैंने जितनी भी नफल इबादतें की हैं, मैंने एक भी इबादत अपने रब को राजी करने के लिए नहीं किया है। वो दरवेश राबिया बसरिया से पूछता है कि मखदूमा, फिर यह इबादत आपने किसके लिए किया है, किस लिए किया है? सवाल बड़ा मुनासिब था, इसलिए कि हम और आप इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
इबादत और रियाजत करते हैं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। हमारा और तुम्हारा मिशन क्या होता है? हमारा तुम्हारा दिल से लगाव क्या होता है कि बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारी इन इबादतों के जरिए राजी हो जाए। लेकिन अजीजों, हजरत राबिया बसरिया क्या पैगाम दे रही हैं, क्या हमारी इस्लाह कर रही हैं, कैसे हमारे दिल को मुनव्वर कर रही है, दिलो दिमाग को रोशन फरमा रही हैं। दरवेश फरमाया कि सुन, आज तक मैंने जितनी भी इबादतें की हैं अपने मौला को राजी करने के लिए रही। आज तक मैंने जितनी भी इबादतें की है, इबादत और रियाजत की है, मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इस इबादत और रियाजत के जरिए अल्लाह के महबूब आका करीम शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। मैं सिर्फ महबूब खुदा को राजी करने के लिए सारी इबादतें कर रही हूं, इसलिए कि जब महबूब खुदा राजी हो गए, खुश हो गए, तो मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तवस्सुल से मुझसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बदर्ज औला मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए कि रब की रजा इसी में है कि उसके महबूब को राजी कर ले जाओ। तो राजी करना किसको है? अल्लाह के महबूब को। जब अल्लाह का महबूब राजी हो गया तो महबूब की रजा ही में खुदा की रजा है। अजीजों, जितनी भी इबादत, रियाजत, तकवा और परहेजगारी, जितने भी नेक काम, अच्छे काम अंजाम दो, इस मकसद से दो, ए अल्लाह तेरा महबूब हमारे इस काम से राजी हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, शफीउल मुज़नबीन राजी हो जाए, ख्वाजाए ख्वाजगा राजी हो जाए, ख्वाजाए कौनैन राजी हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे इस अमल से राजी हो जाए। ऐसा करो। जब इस तरह का करोगे, हर मंजिल पर कामयाब रहोगे, हर मुकाम पे कामयाब रहोगे, अच्छी सोच रखोगे, अच्छी फिक्र रखोगे, अच्छे ख्यालात रखोगे, निगाहें पाकीज़ा होंगी, कान हमेशा पाकीज़ा होगा, जबान हमेशा साफ सुथरी होगी, दिल हमेशा पाक व साफ रहेगा, दिमाग हमेशा पाक व साफ रहेगा। क्यों? जितने भी वर्क हम कर रहे हैं अपनी आंखों के जरिए, अपने कान के जरिए, अपनी जबान के जरिए, अपने दिमाग के जरिए, अपने दिल के जरिए, अपने हाथों के जरिए, अपने जिस्म के आज़ा के जरिए, उसमें हमारा तुम्हारा तसव्वुर क्या रहेगा हम वक्त कि हमारे इस नेक अमल से, अच्छे अमल से, अच्छी सोच से, अच्छे देखने से, अच्छा सुनने से, अच्छी फिक्र से, अच्छा बोलने से महबूब खुदा राजी हो जाएं। तो अब अगर बंदे को किसी चीज से तकलीफ भी होती है तो पलट के जवाब नहीं देता, बल्कि क्या करता है? सब्र करता है। क्यों? सब्र करने का तरीका महबूब खुदा ने बताया है और कुरान ने ऐलान फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह जो है वो साबरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। तो अब किसी ने तुम्हारी हुजू की, किसी ने तुम्हारी गीबत की, किसी ने तुम्हारी बुराई की, किसी ने तुम पर ऐब लगाया, किसी ने तुम पर तोहमत लगाया, किसी ने तुम पर इल्जामात लगाए, इल्जाम तराशी किया, तो अब तुम क्या करो? तुम तो पाको साफ हो, तुम्हें यकीन है अपनी जात पर, बिल्कुल मुतमईन रहो, पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो इल्जाम लगाने वाला, वो बदगुमानी पैदा करने और कराने वाला लोगों के दरमियान वो खुद रुसवा होगा, खुद जलील होगा, खुद लोग उसे जूते और चप्पल से मारेंगे। लेकिन कब ये होगा? जब तुम साबिर बने रहोगे। क्यों? जब साबिर बने रहोगे हर चीज को सुन करके, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाएगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाएगा, तुम्हारी नेकियों को बुलंद फरमाएगा। और जिसने तुम पर इल्जामात तोहमत लगाई हैं, अगर उसके पास नेकियां होंगी तो उसकी नेकियां तुम्हारी नेकियों के अंदर डाल दी जाएंगी, तुम्हारे मर्तबे को बुलंद कर दिया जाएगा, वो खोखला हो जाएगा। तो जो इंसान खोखला होता है, जो खोखला होता है, बदनजर होता है, आईबी होता है,
وہی الزام تراشیاں زیادہ تر کرتا ہے، اور جو کامیاب ترین انسان ہوتا ہے وہ ان تمام اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو سن کر اپنی ذات سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ جب کیا ہی نہیں ہے تو مطمئن ہے، جب مطمئن ہے تو صبر و شکر سے وہ کام لیتا ہے، اور جب وہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے تو پیغام ربی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ عزیزو، قائم رہو، اسی پہ ہمیشہ قائم رہو۔ خدا کا شکر ہے، میں بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے تمام فالوورز، تمام مریدین، تمام متقدین، تمام چاہنے والوں کہ یہ اطمینان دلا رہا ہوں، مطمئن رہو، خدا کا شکر ہے۔ کوئی بھی فرد اس ٹائم تک، کل کیا ہوگا معلوم نہیں، اس وقت تک اس فقیر اشرفی کی ذات پر انگلی اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے کہ میرے اسی عمل، اسی کردار کو میرے تمام فالورز، میرے تمام مریدین، میرے تمام چاہنے والے بھی اپنائیں گے، اپنی زندگی کو ایسی اطمینان بخش اور مطمئن بنائیں گے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی سناتا رہے، وہ بے خوف و خطر رہیں، اس لیے کہ جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تم نے تو خوف کس بات کا۔ اور کہنے والے جو بھی کہتے رہیں، سنانے والے تمہیں جو بھی سناتے رہیں، بس تم کیا کرتے رہو؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے رہو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ عزیزو، عاشقو، بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں، فون کر کے بولتے رہتے ہیں، حضور فلاں تکلیف دے رہا ہے، فلاں پریشان کر رہا ہے، فلاں نے ہم کو یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ الزام لگا دیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے ایسا کیا نہیں ہے، میں نے ایسا جب کیا نہیں ہے تو صبر کرو، صبر کرو۔ میرا آج کا یہی پیغام ہے کہ صبر کرو۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے نا کہ الزام لگانے والے کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، وہ ہمہ وقت رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، کرم میں رہتا ہے۔ دیکھیے، غریب نواز تھے نا، خواجہ خواجہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ نہیں؟ اجمیر شریف کی سرزمین پر کیسے کیسے الزامات ان پہ لگائے اس زمانے کے جادوگروں نے، بادشاہوں نے، لوگوں نے، لیکن غریب نواز نے کسی کو پلٹ کے کوئی جواب دیا نہیں، بلکہ الزام لگانے والے، برا کہنے والے الزام لگاتے رہے، برا کہتے رہے، اور غریب نواز کا عمل کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، عقل عطا فرما، شعور عطا فرما، اور صابر بن کے رہے۔ دنیا نے کیا دیکھا؟ الزام لگانے والے، الزام تراشی کرنے والے، غریب نواز کے مد مقابل آنے والے جو ان کے دشمن، دین کے دشمن تھے، لیکن غریب نواز کا صبر ایسا رنگ لایا کہ ایک ہی بیٹھک میں لاکھ لوگ، تقریباً 99 لاکھ لوگ ایک ہی بیٹھک میں ایمان لائے، اسلام قبول کیا، غریب نواز کی غلامی میں آئے۔ عزیزو، غوث العالم تاریخ السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سے شب جہانگیر سمنانی کو ستانے والوں نے کم ستایا، بڑے بڑے جادوگروں نے ستایا، اپنی زور لگایا، زور آزمائش خوب کیا، لیکن مخدوم پاک سب دیکھتے رہے، پلٹ کے کوئی جواب نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے؟
वही आबा अजदाद का तौर तरीका मखदूम पाक को काम आया। खुदा की बारगाह में हाथ उठाया, ए अल्लाह इन्हें समझ अता फरमा, अक्ल अता फरमा। सब्र से काम लिया। एक वक्त ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा आया, दुनिया ने देखा कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के इस जानशीन का सब्र ऐसा काम आया, ऐसा काम आया कि एक ही बैठक में मशाइखीन किराम फरमाते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों की जबानी सुना, एक ही बैठक में मखदूम समनानी के दस्ते अनवर पर 40 लाख कुफ्फारों ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के हाथ पे 99 लाख काफिरों ने इस्लाम कबूल किया। मखदूम अशरफ के नाम पर हाथ पर एक ही बैठक में 40 लाख काफिरों ने इस्लाम कबूल किया। ये कौन सी ताकत थी? यही उनकी सब्र की ताकत थी। वो साबिर और शाकिर बने रहे। जो साबिर और शाकिर बना रहता है, कुरान अजीम ऐलान फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसे साबिरीन के साथ, ऐसे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। यानी उसका करम, उसकी रहमत हमेशा उसके साथ शामिल हाल रहती है। हर मंजिल पे मौला उसे कामयाबी अता फरमाता है, हर जगह पे मौला उसे कामयाबी अता फरमाता है। तो अजीजों, हम और आप गौसे आजम के गुलाम हैं ना, गरीब नवाज के गुलाम हैं, मखदूम अशरफ के गुलाम। हमें इधर उधर की किसी बनावटी निस्बत पे नाज नहीं है, हमें खुद साख्ता निस्बतों पे नाज नहीं है। हमें जो नाज है, मखदूम अशरफ की निस्बत पे नाज है, गरीब नवाज की निस्बत पे नाज है, गौसे आजम की निस्बत पे नाज है, आकाई नक्शबंद मौलाए सहरवर्द की निस्बत पे नाज है। हमें जो नाज है महबूब इलाही की निस्बत पर, हमें जो नाज है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निस्बत पर, बाबा फरीद गंजे शक्कर की निस्बत पर, हमें जो नाज है शेख अलाउल हक पंडवी, सिराज अखी आईने हिंद की निस्बत पर, नूर कुतुब आलम पंडवी की निस्बत पर, हमें नाज है मखदूम आफाक सरकार सीदर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरलैन की निस्बत पर, हमें नाज है हजरत सरकार शाह वजीहुद्दीन अलवी की निस्बत पर, हमें नाज है हजरत शाह आलम की निस्बत पर, हमें नाज है हजरत कुतुब आलम की निस्बत पर, हमें नाज है ख्वाजा दाना की निस्बत पर, हमें नाज है सरकार मूसा सुहाग की निस्बत पर, हमें नाज है इन औलिया अल्लाह की निस्बत पर। इन्होंने जो हमें पैगाम दिया है, जो हमें दर्स दिया है, अजीजों, वही हमारे लिए काफी है, वही हमारे लिए काफी है। हम उस पर चलें, उनके तर्ज अमल को अपनाएं। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी निस्बत को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सब्र और शुक्र कनात से काम लेते रहो। हर शख्स, मेरा हर अकीदतमंद, मैं अपने तमाम मुरीदीन से, अपने तमाम चाहने वालों से, अपने तमाम फॉलोअर्स से, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे केरला के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे मुल्क बैरून मुल्क के हों, मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि बस तुम्हारी लिए सिर्फ निस्बते मखदूम अशरफ काफी है। निस्बते मखदूम अशरफ काफी है। शान से कहो, शान से कहो कि हम अशरफी हैं। बिल्कुल इत्मीनान से कहो कि हम अशरफी हैं। इसलिए कि अशरफियत में जब तुम डुबकी लगाओगे,
अशरफियत के समंदर में जब तुम गोता लगाओगे तो उसके अंदर तुम्हें गौसे आजम भी नजर आएंगे, उसके अंदर गरीब नवाज भी नजर आएंगे, सिलसिले कादरिया पूरा का पूरा नजर आएगा, सिलसिले चिश्त मुकम्मल नजर आएगा, सिलसिले नक्शबंद नजर आएगा, सिलसिला सरवर्द नजर आएगा। दुनिया के जितने सलासिल, अजीम सलासिल हैं, हर एक का रूहानी मरकज, हर एक के रूहानी मरकज का नाम मखदूम अशरफ है। और हम इसी निस्बत पर नाज करते हुए अपने आप को अशरफी कहते हैं, और अशरफी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उसने सारी निस्बतों को अपने अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ समा रखा है। नाज से कहो, शान से कहो, फख्र से कहो। और मैं बारहा कहता रहता हूं, अपने मुरीदों को समझाता भी रहता हूं, हर शेख, हर आलिम बाअमल, मुत्तकी, परहेजगार, मशाइखीन, शेख और उलमा किसी भी सलासिल के हों, हमेशा उनका एहतराम करते रहो। उनके एहतराम से फायदा यह मिलेगा कि उन पर बरसने वाली रहमतें, अगर उसका एक भी जर्रा तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारी भी किस्मत संवर जाएगी। हां, मिलते वक्त इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि किसी बनावटी खुद साख्ता पीर के चक्कर में मत पड़ना। हां, जिनकी निस्बतें मजबूत हों, जिनकी निस्बतें मजबूत हों, उनसे अपनी निस्बत रखो, उनसे अपना ताल्लुक रखो। अगरचे वो कमजोर है, अगरचे वो कमजोर है, लेकिन उसकी निस्बत बड़ी मजबूत है। अशरफ अगरचे कमजोर है तो अशरफ की कमजोरी को मत देखो, बल्कि ये देखो मखदूम अशरफ बहुत मजबूत है, गरीब नवाज बहुत मजबूत है, गौसे आजम बहुत मजबूत है। यही वजह है कि मैं बहुत मुतमईन हूं कि आज तक लोग पूछते हैं मुझसे कि हुजूर आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। मैं क्यों ना मस्त रहूं यार। जिसके सर पे गौसे आजम का साया हो, करम हो, जिसके सर पर गरीब नवाज मखदूम अशरफ का फैजान करम और साया हो, वो घबराए क्यों, वो परेशान क्यों हो। अजीजों, हमेशा मेरा एक मिजाज रहा है कि मैं अपने चाहने वालों को हमेशा अच्छी बातों की तरफ राग़िब कराता रहा हूं। उन्हें उसकी तरफ ले जाने की मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहे वो महफिल नूर के जरिए हो या तरीक़त मंजिल में जिस वक्त रुश्द व हिदायत का सबसे बड़ा मरकज है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन और सुन्नियत का बेहतरीन काम तरीक़त मंजिल के जरिए हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें, सारे का सारा करम जो है मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए नेमत सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का है। यह उन्हीं का करम है, यह उन्हीं की दुआएं हैं। और मेरे वालिद बुजुर्गवार सरकार शेखुल मशाइख सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफी उल जिलानी रदी अल्लाह तआला नवासे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का बड़ा बेपनाह करम, उनकी दुआ है। वालिदैन की दुआएं, बहुत मुतमईन हूं, बहुत सुकून से हूं, बड़े चैन से हूं और बहुत शान से हूं। क्यों ना वो बच्चे शान और शौकत से रहें जिन बच्चों के मां बाप खुश रहें, जिन बच्चों के मां बाप अपनी औलादों को दुआ देते रहें। अजीजों, आज हमारे यहां सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हमारे शेख ने हमें बात बताई,
ہمارے مرشد برحق نے ایک بات بتائی جسے میں کوٹ کروں. مرشد برحق یعنی حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم ہند ہے. میرا جب تربیتی دور تھا، جب میں ان کے ساتھ 12 سال تک رہا کنٹینیو، اسی درمیان ایک مرتبہ وہ مجھے نصیحت کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ بیٹا اشرف، تم میرے پوتے ضرور ہو، میرے بیٹے ضرور ہو، میری بھی دعا تمہارے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب تم سے تمہاری ماں اور تمہارے باپ جہانگیر اشرف خوش ہوں گے. میں بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ میرا شیخ ایسی کیا بات کہہ رہا ہے. میں نے کہا حضور ایسا؟ کہا ہاں. کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے حق میں میری دعا قبول ہو. کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام مجھے نصیحت کر رہے ہیں. میں اس وقت غالباً ان کے ساتھ کرناٹکا کے دورے پہ تھا. وہاں مجھے وہ نصیحت کر رہے ہیں. بہت سی نصیحتوں میں سنی ایک نصیحت یہ بھی، تم چاہتے ہو کہ اگر میری دعا تمہارے حق میں قبول ہو تو تم ایسا کرو بیٹا، ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھو، ادب کرو، اور اپنے باپ یعنی جہانگیر میاں کی عزت کرو، احترام کرو، اپنے باپ کو خوش رکھو. اگر تمہارے والدین خوش ہیں تو پھر تمہارے مرشد یعنی تمہارے دادا کی دعا بھی تمہارے لیے کارآمد ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے وقت کا مفسر اعظم، اپنے وقت کا مجدد اعظم، اپنے وقت کا قطب الاقطاب، اپنے وقت کا بہترین شیخ طریقت، اپنے وقت کا شیخ المشائخ، اپنے وقت کا عظیم الشان رہبر و پیشوا یعنی حضور شیخ الاسلام المسلمین عزیزو کتنی عظیم نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اس بات کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ صرف میرے شیخ کی بات مجھے تک نہ رہ جائے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے دعا کی، اشرف میاں آپ میرے مرشد ہیں، آپ نے دعا کی، ابھی تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ عزیزو، بہت سے لوگ اس طرح کا کوشچنز کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہے؟ آپ نے دعا کی تھی حضور، آپ قبول نہیں ہوئی. ریزن، وجہ شیخ نے میرے بتا دیا. میرے شیخ نے، حضور شیخ الاسلام نے مجھے نصیحت کی تھی، مجھے بتا دیا. میں مناسب سمجھتا ہوں اس وقت کی اس بات کو میں تمہیں بتاتا چلوں. دعا میری قبول ضرور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو، انہیں خوش رکھو، انہیں خوش رکھو. ماں باپ کی دعا سے بڑھ کر بچوں کے لیے کسی کی دعا نہیں ہو سکتی. جب اپنے ماں باپ کو راضی ہی نہیں کرو گے، خوش ہی نہیں کرو گے، تو بتاؤ تمہارے شیخ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر ماں باپ کو راضی کیے بغیر شیخ کی دعا قبول ہو جاتی تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین مجھے یہ نصیحت نہ کرتے کہ بیٹا میری بھی دعا تمہارے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ تم سے راضی رہیں گے، خوش رہیں گے. تو لہٰذا اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرو. وہ میرا وقت 93 94 کی نصیحت دل و دماغ میں گشت کرتی رہی ہمیشہ، اور آج کا دن ایک لمبا عرصہ گزر گیا. میری 22-23 سال کی عمر سے لے کر ابھی تک خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے، میں نے نہ کبھی اپنے باپ کا دل دکھایا، نہ اپنی ماں کا دل دکھایا، نہ ماں کا دل دکھایا، نہ اپنے باپ کا دل دکھایا. ماں بھی میری اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت یابی نصیب فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ کرم مجھ پر بھی، میرے تمام بھائی بہنوں پر، میرے تمام عقیدت مندوں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. والد بزرگوار سرکار صوفی ملت تو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن یہ کہہ گئے مجھ سے، بیٹا گھبرانا مت، اشرف گھبرانا مت، یہ دنیا کی بنی ہوئی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی، یہ آرٹیفیشل بابا یہ تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے.
तुम फिक्र मत करना, तुम्हें रुसवा करने वाले, तुम्हें सताने वाले खुद जलील होंगे, और तुम कभी अपने आप को तन्हा मत समझना। किसने कहा था? सरकार सूफी मिल्लत ने, कि कभी अपने आप को तन्हा मत समझना, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारा ख्याल रखता हूं, ऐसे ही बादे विसाल मैं तुम्हारे साथ साए की तरह रहूंगा, तुम फिक्र मत करना। वल्लाह, खुदा की कसम, मैं अपने मुर्शिद बरहक, अपने वालिद बुजुर्गवार को अपने साथ हमा वक्त साए की तरह पाता हूं। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, मैं जैसे ही सरकार सूफी मिल्लत को याद करता हूं, फौरी गैबी मदद होती है, और फौरी अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुर्शिद के करम से, मखदूम पाक के फैजान से कामयाबी अता फरमाता है, कामयाबी अता फरमाता है। लोगों ने बहुत कोशिशें की चहार तानीब से मुझे घेरने की, दरवाजे बंद करने की, ये वो ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाए, ये डायलॉग बाजी, वो डायलॉग बाजी, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे शेख की, हुजूर शेखुल इस्लाम की दुआएं मेरे साथ। मुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, बस मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे शेख की दुआ मेरे लिए काफी है, मेरे लिए इतना ही मेरे लिए काफी है, इतना ही मेरे लिए काफी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं समझ रहा हूं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे मुर्शिद की दुआ काफी है, तो यही चाहता हूं मैं कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे मुरीदीन, मेरे चाहने वाले भी अपनी जिंदगी में यही अमल पैदा करें, अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने माँ बाप को खुश रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनसे प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें, उन्हें कल्बी सुकून पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर रुके हुए काम इन्हीं नेक चीजों के जरिए, इन्हीं नेक खिदमात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देगा। सारे रास्ते कुशादा हो जाएंगे, खुल जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो अजीजों, ये पैगाम घर घर पहुंचाइए, ये पैगाम अपनी नस्लों को सुनाइए, उन्हें समझाइए। हर छोटा बड़ा इस पैगाम को मेरे अपने दिल में बसाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी राह हमवार हो जाएगी। सबसे बड़ी नेमत मां बाप हैं। दुनिया के किसी आस्थाने पे चले जाओ यार, कोई मतलब नहीं होता। वो साहिब आस्थाना भी उसे देखकर शर्मिंदा हो जाया करते हैं जिनके मां बाप खुश नहीं है, और अगर मां बाप खुश हैं तो दुनिया की सारी चीज तुम्हारा वेलकम करेगी। तो अपना हर अमल, हर चीज मां बाप को राजी करने के लिए करो ना। इन्हें खुश करो, इन्हें खुश करो, इन्हें खुश करो। इनको अगर खुश करोगे तो याद रखो, हर तुम्हारी भी औलादें तुम्हें खुश रखेंगी, तुम्हारी औलादें भी तुम्हें खुश रखेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को, अपने वालिदैन को वफादार बनाए, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र अता फरमाए, अच्छे ख्यालात अता फरमाए, और हम सबों के जानो मालो ईमान की मौला तू हिफाजत फरमा, हासिदीन, मुनाफिकीन, जालिमीन से महफूज फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों ने आज मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछी कि हज़रत आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं। मैं उन तमाम अपने अहबाब को इत्मीनान दिला देना चाहता हूं कि माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अजीम, उसका शुक्र है,
बड़ा ही करम है मखदूम समनानी का व सरकार सीदना सालारे मसूद गाजी का कि मैं बिल्कुल 100% फिट हूं, ठीक हूं, बेहतर हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं इस वक्त मुस्कुरा रहा हूं, ऐसे ही मेरा हर चाहने वाला जब तक जिंदा रहे ऐसे ही मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, खुश रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों में खूब प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। बस आखिर में चलते चलते मैं इतना कहूं कि मेरा यह पैगाम घर घर पहुंचाइए। मोहब्बत, प्यार, उल्फत ये घर घर पहुंचाइए। हर बच्चे बच्ची ये सबक हासिल करे कि उसकी तरक्की उसी वक्त है जब उसके माँ बाप उससे राजी हैं, जब उसके माँ बाप उससे खुश हैं। माँ बाप खुश है, फिर तुम्हें कोई कितनी भी बद्दुआ दे, किसी की अबे जब दुआ नहीं कबूल होती तो बद्दुआ कैसे लग जाएगी। आजकल लोग डरवाने लगे हैं कि अगर मुझसे नहीं मिलोगे मैं बद्दुआ दे दूंगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनो, अगर माँ बाप नाराज हैं तभी बद्दुआ लगेगी, और अगर माँ बाप खुश हैं, अपने बच्चे बच्चियों से राजी हैं, कितना बड़ा भी हो यार, कैसी भी बद्दुआ दे, किसी की बद्दुआ दुआ लगने वाली नहीं है। इसलिए कि किसी भी बद्दुआ का गुजर हो ही नहीं सकता माँ बाप की दुआओं के आगे। तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। अपने माँ बाप को राजी करोगे, खुश करोगे तो सरकार शाह आलम तुमको अपना फैजान करम देंगे। शाह वजीउद्दीन अलवी की दुआएं तुम्हें मिलेंगी, शाह अहमद कट्टू की तुम्हें दुआएं मिलेंगी, सरकार मूसा सुहाग की तुम्हें दुआएं मिलेंगी, हजरत ख्वाजा दाना की तुम्हें दुआएं मिलेंगी। तो माँ बाप को खुश करो ना, माँ बाप को खुश करो, बिल्कुल बेफिक्र होकर के रहो। घर घर यह पैगाम पहुंचाओ। मेरे तमाम मुरीदीन अकीदतमंदों पर यह लाजिम है कि यह पैगाम मेरा किसी भी शक्ल में हर घर में पहुंचना चाहिए। और आज मैं बड़े ही आखिर में बड़े ही अफसोस के साथ यह आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बड़े ही अच्छे आलिमों में से और बेहतरीन राइटर और बड़ी ही इल्मी और काबिल पर्सनालिटी थी हज़रत अल्लामा मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही, जिन्होंने तारीख पर, बुजुर्गों की तारीख पे बड़ा बुनियादी काम किया है। और मुफ्ती आजम साहब, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब टांडवी, जो एक लंबे अरसे तक बरेली शरीफ के इदारों में दर्स तदरीस का काम अंजाम देते रहे, जिनके हजारों शागिर्द रहे, इस दारे फानी से कूच कर गए, अपने रब्बे हकीकी से जा मिले। चंद दिन पहले ही इन दोनों हमारे बेहतरीन मोहसिन, बेहतरीन आलिम दीन का इंतकाल हुआ। और कल मैं बंबई में था तो वहां मेरे पास खबर आई कि हुजूर सदर शरिया की साहिबजादी यानी अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब की बहन, उनका भी जुमा की नमाज के वक्त इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी खताओं गलतियों को माफ फरमाए, गौस व ख्वाजा व मखदूम के सदके तुफ़ैल की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम पनासिया, वालेकुम अस्सलाम। हबीब रहमान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिराज आखुंजी, मलिक अल्लूर, मोहम्मद सुहेल इब्जी, मतीन अशरफी, मोहम्मद शकील, रहमतुल्लाह अशरफी, जाकिर मुतवल्ली, सादिक भाई, रेतिया अशरफी, मकबूल हुसैन, लाला अशरफी,
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबों को खुश रखे, आबाद रखे, हर आफत बला मुसीबत परेशानियों से बचाए रखे। दुआ के लिए हाथ उठाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह तो रहम फरमा, मौला करम फरमा, फर्द फरमा। सूरह फातिहा की नेमतों रहमतों बरकतों से हम सबों को मालामाल फरमा। बारेला हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। या अल्लाह हम सबों के कल्ब में तू अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा। राह हिदायत राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी उशाक, जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मौला सबों पे रहम करम फजल फरमा। या अल्लाह हम सबों को अपने वालिदैन का ताअत गुजार बना, अपने वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। मौला हमारे तमाम उलमा मशाइखीन को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। बिलखुसूस हमारे तमाम मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुरीदीन सबों पर अपना खुसूसी करम फरमा। सबों के रिस्क में, इल्म अमल में तरक्की अता फरमा। रिस्क हलाल अता फरमा। वसत रिस्क इल्म नाफे अता फरमा। हर नागहानी आफतों बलियातों बाव परेशानियों से सबों को महफूज फरमा। पंज वक्ता नमाजी शरीयत मुतहरा का पायबंद बना। कुरान अजीम की तिलावत के जज्बा अता फरमा। कुरानी फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मौला जिन वालिदैन के सरों पर बच्चे बच्चियों के फराइज है रिदाए फातिमी के सदके उतफैन के लिए नेक व पाकीज़े रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हमारी नौजवान नस्लों की हिफाजत फरमा। बारेला इस्लाम का बोलबाला फरमा। इस्लाम के चाहने वालों का बोलबाला फरमा। या अल्लाह दुश्मनाने दी से हम सबों को महफूज फरमा। हासदीन मुनाफिकीन जालिमीन से महफूज फरमा। मौला हम सबों को सेहत कामिला व आजिला दराज़ी उम्र इल्म नाफी अता फरमा। या अल्लाह मेरी वालिदा को सेहत व सलामती अता फरमा। मेरे मुर्शिद बरहक को सेहत व सलामती अता फरमा। उनका साए करम मेरे सर पर हमेशा, हमारे चाहने वालों पर हमेशा कायम दायम फरमा। बारे इलाह करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा दरहाई बस्तरा जिकली दे करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। ऐ जहांगीर पीरे मखदूम नारवद अजदरत कसे महरूम। बहरे औलाद खैश अशरफ हाकिमे वक्तरा बखुन महकूम। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रात पश्ती बेहक के ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुनिया मईनुद्दीन चिश्ती। दस्तगीरी का तलबगार हूँ शैअन लिल्लाह। मीर बगदाद में नाचार हूँ शैअन लिल्लाह। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बू अशरफी रायपुर मेरी तरफ से सभी लोगों को सलाम और दुआ रायपुर में भी कह देना। खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। अब्दुल मतीन अशरफी जब भी खाने काबा में हाजिरी देना मेरी सेहत सलामती के लिए दुआएं करना, और ख़ास करके जो मेरे हासिदीन हैं अल्लाह तबारक व तआला